بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز کی سیاست ہر وقت ہی موضوع بحث رہتی ہے، اور جن دنوں ہم سانس لے رہے ہیں ان ایام میں معاشی سرگرمیاں شدید سوالیہ نشان کے گرداب میں ہیں۔ کسان برادری معاشی بحران کا شکار، اور اب تاجر بھی مختلف حوالوں سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ٹیکسز کی بھرمار، ڈیوٹیاں، پالیسیاں، ان ایشوز پر تاجر برادری وطن عزیز کے کونے کونے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ بے شمار مسائل اور مشکلات میں گھرے تاجر لیا میں بھی روزمرہ زندگی کے موضوعات پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج انجمن تاجران لیا کے سابق عہدیدار، سابق صدر، سابق ممبر بلدیہ لیا، سپورٹس مین اور سوشل ورکر ملک مظفر اقبال دھول صاحب کو پروگرام میں دعوت دی ہے۔ پروگرام میں ملک مظفر اقبال دھول صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آگے چل کر ان سے لیا کی تجارتی کاروباری سرگرمیاں، تاجروں کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ملک صاحب، آج کا جو برننگ ایشو ہے وہ تجاوزات کے آپریشن کا معاملہ ہے۔ انجمن تاجران سے لیا کی تجاوزات کا ایشو حل نہ ہوا، بازار سکڑے رہے۔ تجاوزات کے نام پر سرکار نے اب ایک آپریشن کیا ہے۔ اب بازار، ہماری سڑکیں، شہرات کشادہ دکھائی دیتی ہیں، مگر بہت سارے تاجر اس فیصلے پر ناراض ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ملک مقبول الہی صاحب اور عبدالرحمن خدیج صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور آپ کی ساری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویلکم۔ اور اپنے میں ناظرین جو سن رہے ہیں پروگرام، میرے تاجر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، آپ نے پوچھا نا ناجائز تجاوزات، ہم بھی ناجائز تجاوزات کے حق میں ہیں۔ یہ ناجائز تجاوزات نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں حکومت پنجاب کی اس اقدام کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں۔ جس طرح انہوں نے یہ آپریشن شروع کیا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم جہاں سے آج 70 75 80 سال ہو گئے ہیں حکومت پاکستان کو، یہ ہمارا ملک بنے ہوئے، اس طرح کا جو ہمارا علاقہ جو گرمی کا علاقہ ہے، اس میں 50 سینٹی گریڈ سورج کی تپش ہوتی ہے۔ اس کے سامنے 6 7 یا 4 میٹر 4 فٹ ہمارا جو شیڈ تھا، اس کی دھوپ کی تپش کی وجہ سے ہمارے علاقے میں لوگوں نے لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے ناجائز طریقے سے یہ اوچے ہتھ کنڈوں کی طرح انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ یہ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہ ہمارے انجمن تاجران کی نائلی اور نالیکی ہے۔ جو 6 7 ماہ سے یہ آپریشن چل رہا تھا، انہوں نے انتظامیہ کو، میں اے ڈی سی جی صاحب کو ملا جو اس کے انچارج ہیں ہماری بلدیہ کے، انہوں نے کہا ہم 6 7 مہینے سے یہ میٹنگیں کر رہے ہیں، ان کو بار بار کہا ہے یہ اپنے شیڈ وغیرہ اتار لو۔ انہوں نے پہلے کہا 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ شیڈ لگا لیں، لوگوں نے پہلے توڑ کے پھر بنایا، پھر توڑے ہیں۔ اب
जो हमारी हुकूमत की तरफ से क्रैक डाउन हुआ है, ये सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये हमारे अंजुमन ताजरा की नाअहली नलायकी की वजह से ये हुआ है। हमारे जो मौजूदा सदर हैं, अब वो ये कहते हैं जी ये हमारे खूबसूरती लिया की खूबसूरती के लिए, ये कौन सी खूबसूरती है इसमें? नलायक आदमी, आपने कौन सा ये इसमें खूबसूरत नजर आ रहा है? हमारा लिया में कौन सी ये दूध की नहरें बह जाएंगी, आप कहते हैं ये खूबसूरत है? इस तरह का नजायज नायल नलायक आदमी हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं हुकूमत वक्त से भी यही कहना चाहता हूँ, इस तरह का मेहरबानी करें। शेड हमारे इलाके कम अज़ कम हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया में जितनी गर्मी होती है, इसमें शेड 3-4 फुट की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, शेड की इजाज़त होनी चाहिए। आपकी ज़ाहिर है आप भी साबिक़ ओहदेदार हैं, आप वोट आपको भी ताजरों ने दिए हैं। आपने इंतज़ामिया से बात की कि ये मसला सुलह सफाई से और मुज़ाकरात से कुछ हल हो जाए? जी, मैंने जब पहले दिन क्रैक डाउन हुआ, मैं दूसरे दिन गया ADC साहब को, DC साहब बनी थी, उनसे मेरी हुई है मीटिंग। उन्होंने कहा हमने आपके सदर साहब ने हमें इजाज़त दी है। उसने कहा ये आप कर लें क्रैक डाउन। सिर्फ एक FIR की वजह से यह सारा काम हुआ है। अगर वो नलायक नायल आदमी ये चाहता, बाकी शहर में लोग डट गए हैं, ताजरों ने इस तरह का क्रैक डाउन नहीं होने दिया, ये भी डट जाता, ये हमारे ताजर उसके साथ, हम भी साथ होते, हमें बुलाता, हम भी साथ खड़े होकर, किस तरह होता? ये नहीं होना चाहिए था। मगर वो पहले जो आप बात कर रहे थे कि इंतज़ामिया ने 2.5-3 फुट की इजाज़त दी, फिर बाद में उस इजाज़त को वापस ले लिया गया, तो क्या वजह बनी कि ये इजाज़त फिर वापस ले ली गई? मलिक साहब वो कहते हमने इजाज़त दी भी नहीं, इन्हें झूठ की, इन्हें खुद साख्ता, ये इन्होंने अपने ऐलानात, आपने सुनियों के स्पीकर में ऐलानात किए, फलां रोड पे 4 फुट, फलां रोड पे 3 फुट, फलां रोड पे 8 फुट। वो कहते हमने इजाज़त दी भी नहीं है इन्हें। आपको मैं एक बताऊं, हमारा एक बाईपास के ऊपर एक माह पहले एक दुकान जमालदीन सन्स टाइल वाले के नाम से एक दुकान बनी है। उसमें उन्होंने ना जी उसे अजहर से उसने कहा, मुझे बता रहा था, मैंने पूछा है भाईजान मैं शेड वगैरह अपना बना रहा हूँ, बोर्ड लगाना है, मेरा लाइटिंग वाला बोर्ड है, मैं बना लूँ। इन्होंने कहा ठीक है, इजाज़त है, आप बना लो। एक माह में उसका 6 से 8 लाख रुपए वो कह रहा था, मेरा नुकसान हो गया, मैंने उतार दिया सारा कुछ, जब टूट फूट गया है। उसके जब आपको पता था ये क्रैक डाउन या हुकूमत ने नहीं बनाने देना, आपने क्यों इजाज़त दिया किसी को? लोगों का करोड़ों का तखमीना लगाए, करोड़ों में जा पड़ेगा। ये शेड की वजह लाइटिंग बोर्ड तोड़ दिए हैं, ये सरासर ज्यादती है। अच्छा, आप मुंतखब सदर को नालायक कह रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है मुंतखब ओहदेदार को नालायक कहना? मलिक साहब नालायक तो वो है, मेरी बात सुनो ना। जिस तरह आप जुल्म और ज्यादती को कभी किसी दुकानदार के पीछे किया है, अब उसने जब हुकूमत या इंतजामिया से कहता मेहरबानी कर हमें इजाज़त दें, जब उनसे कहता, जब हमारे दुकानदारों को वो कहता आप उतार दें, जब उन्होंने क्रैक डाउन किया खुद किया, ये पहले दिन तो नज़र भी नहीं आया। जब पूरा सदर बाजार रेलवे फाटक से सदर बाजार तक ये ऑपरेशन हुआ, ये तो नज़र भी नहीं आया। मैं गया था, हमारे एक दो तीन दुकानदार को उठा लिया था, मैं ऐसे सब गया, उनको ले आया वापस, ये तो नज़र भी नहीं आया उस दिन। मगर वो आपको याद है कि जनरल बस स्टैंड पे दुकानें सील हुई और लबे नीलम पे एक दुकान पे मजिस्ट्रेट साहब ने छापा मारा, कार्रवाई हुई, उस पे तो सदर साहब बड़े सरगर्मी से दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अपनी भरपूर मौक़िफ़ का इजहार किया। हमें तो नज़र आया, आपको नज़र क्यों नहीं आता? मलिक साहब मेरी बात सुनें, जब ये सदर बाजार जनरल बस स्टैंड वाला ये वाक़या हुआ ना जी, इसने दुकानें उन्होंने सील की, बल्दिया वालों ने इसे डी सील किया है, इसने सरासर ज्यादती की है। ये तरीकाकार नहीं अपनाना चाहिए था। अगर तरीकाकार वो होते, अब वो मिनते कर मेरी FIR ख़त्म हो, यही अगर वो पहले इसी साहब से या ADC साहब से या DC साहबा से रिक्वेस्ट कर लेता, मेहरबानी करें इनका चलो दुकानें कर दें, मैं इनका क्या ना नक्शों का मसला था, को पैसे जमा कराने थे वो करा देते, मालकन कर 4 दुकानें उनके वो करा देते। अब वो दुकानें तो 1 माह होने को आए, वो दुकानें सील दोबारा सील हो गई हैं। इसने उधर जाकर ना जी अपनी बदमाशी
नाअहली नलायकी की वजह से वो ने डीसील खुद कर दिया। इसको किसने इख्तियार दिया था? अब FIR हुई है या मिन्नतें कर रहा है, भागा भागा फिर कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता कौन है। मिन्नतें कर रहे हैं? दुकानदार मिन्नतें कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सदर या खुद साख्त नायल आदमी ये कहता है मेरी FIR खत्म हो। नहीं, ओहदेदारान के लिए तो FIR बड़े एजाज की बात समझी जाती थी। नहीं, वो कहाँ से? अब वो अब कहना वो कहता नहीं मेरे, अब वो हमारे पीछे ये काली भेड़े हैं जिन्होंने मेरे FIR करी। अब छोटी से सीधी सी बात है, आप काली भेड़े हैं? जी। वो कहता है बारहवीं साहब का नाम भी कहना, वो कहता है बरमला कहते हैं ये मले मुजफ्फर और बारहवीं साहब ने मेरे ऊपर FIR कराई है। अगर हम काली भेड़े हैं तो फिर ये अब जब इसने एहतजाज किया था 20-30 बंदों के साथ, हमें क्यों बुला रहा था, मिन्नतें कर रहा था? अब मेहरबानी करें मेरी FIR के हो गई है, मेरे FIR खत्म कराएं। इसे शर्म आनी चाहिए। जब पहले वाकया हुआ था FIR, उस टाइम ही हमें बुलाया था, आप आ जाए सदर बाजार मोड़ के ऊपर, हम इसके नौकर हैं, हम उसके चले जाएं, भाग जाएं। जब इसके ऊपर FIR होती है हमें बुलाता है। पहले तो कभी आज तक हमें कोई लिफ्ट नहीं करे, कोई बात नहीं किया हमारे साथ। फिर आप गए थे? नहीं, हम क्यों जाते हैं? हम इसने कौन सा अच्छा काम किया हुआ था? इसने अपनी बदमाशी की अपनी दिखाने के लिए मैं इंतजामिया के ऊपर मैं हावी हो जाऊंगा, हम इसका क्यों साथ देते? अच्छा, ताजर तो ताजर होता है, ये काली भेड़ का तस्वर कहाँ से आ गया? पता नहीं, इसके जहन में इसकी खलश है, पता नहीं ये जहनी मरीज है, ये पता नहीं आपने क्या समझता है। काली भेड़े तो आप खुद हो। आपने जो क्या ना घटिया काम करते हो, आपके ऊपर 3-4 स्कैंडल बन चुके हैं। काली भेड़े कौन? हमारे ऊपर 7 साल हमारा दौर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बंदा एक उंगली उठा के कहते मौलाना मुजफ्फर ने जायज काम किया या वो गलत काम किया। अच्छा, आप कहते हैं कि सदर साहब नालायक हैं और बिल्कुल फारिग हैं, मगर वो तो आपको चैलेंज दे रहे हैं कि जी आप आ जाएं, मैदान में आ जाएं, दोबारा दंगल लगा लेते हैं, इलेक्शन कराने के लिए वो तैयार हैं। तो मैंने 3-4 बार कह चुका, हम भी तैयार हैं। ये आज ऐलान करे, हम आज की डेट में ऐलान करें, मैं आपके चैनल से चैलेंज दोबारा कर रहा हूँ, उसे चैलेंज कबूल कर रहा हूँ, आप आए, हम तैयार हैं। वो कहते हैं मैं लिस्ट नहीं बनाएंगे, चलो आज हमारे साथ बैठे DC ऑफिस में चलते हैं, जहाँ पहले सारा इलेक्शन मैनेज हुआ था, इलेक्शन सारा कुछ उन्होंने कराया था, हम बैठ जाते हैं, नई लिस्टें बना लेते हैं, टाइम फ्रेम दे हमें। नई लिस्ट के लिए तो फिर 3 साल चाहिए होंगे। नहीं 3 साल नहीं, हमारा पुरानी लिस्ट पे इलेक्शन करा लेते हैं। हम तो कहते हैं पुरानी लिस्ट पे जिसमें ये उस लिस्ट में जीता उसी में कराए, हम तो तैयार हैं उसी लिस्ट पे कराने। पुरानी लिस्ट पे आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, आप पुरानी लिस्ट पे तैयार हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि लिया शहर जो एक बंद गली में वाक़या है, जो इसके मुआशी हालत पहले ही दगरगू है, यहाँ लिया के लोगों को बहुत सारे जो लूटने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ नामों से लूटने वाले लोग हैं, बहरूपिया किस्म के लोग हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों के करोड़ों अरबों रुपए लूट लिए, जिनमें एक बड़ा नाम अब्दुल हई तुंगर का है। आप अंजुमन ताजरान के साबिक ओहदेदार हैं, सियासी कारकुन हैं और रनर अप रहे हैं इलेक्शन में, मगर आपकी तरफ से कभी भी ये मुतालबा नहीं आया, कोई ख्याल नहीं पेश किया गया कि ये जो लिया के मासूम लोगों की जेबों पे जिन लोगों ने डाका डाला है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मलिक साहब, मैंने इसके बारे में जब ये स्कैंडल अब्दुल हई का हुआ शुरू हुआ ना, जब मैं पता चला, मैंने इसी अपने प्रोग्राम सारे ग्रुप को बुलाया, मीटिंग की। हमने उस टाइम के पुराने DPO साहब को भी मिले थे इस सिलसिले में। लिया के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, इतना पैसा वो बंदा लूट कर चला गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं इसके पीछे कौन है, यही नलायक नायल आदमी। आपका प्रोग्राम एक मैं भी सुन रहा था, उसने कहा लिया का बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, इसके ऊपर ट्रस्ट करें। आप उसमें आपके प्रोग्राम में आया था ना जी, उसने ये बात की थी ना? अब्दुल हई तुंगर हमारे नहीं, ये आपके सदर नायल सदर आया था आपके पास, उसी में उसने ये बड़ी फेवर की थी और लोगों का उस टाइम की इसकी बात कहने के ऊपर लोगों ने बहुत सारा पैसा भी दिया तुंगर साहब को। अब वो जब चला गया स्कैंडल, उसके ऊपर बन गया, उसके वो लोगों को लूट कर चला गया। उसने इसका कारोबार शराकत भी थी इसके साथ, उसने गाड़ियां ली हुई थी। वो कहता है मैंने 60 लाख रुपए देकर हैवल वगैरह 3-4 लिए हैं इससे, इसने वो गाड़ियां भी लोगों से खींच ली हैं। उसका पैसा वो कहता है ये मेरा भी कई करोड़ों में पैसा इसके पास है, और उसने शादियों के नाम पर 10 लाख रुपए भी से दिया हुआ है। अब ये
8 लाख तो ये खुद भी मान गया था, मैंने 8 लाख शादियों के लिए लिया था। तो अब्दुल हई तुंगर को सामने आना चाहिए, वो पब्लिक में मीडिया के सामने आके बात करे। उसने अपने वॉइस मैंने 3-4 दोस्तों के पास सुनी है वॉइस, उसने बरमला का है, मैंने मेरे करोड़ों रुपए इसके पास हैं। अब वो हमें तो नहीं पता उसके साथ, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। तो उस पे सदर साहब अंजुमन ताजरान क्या फरमाते हैं? अंजुमन ताजरान क्या? अंजुमन ताजरान के जो सदर साहब हैं जी जी, क्या कहते हैं उन वॉइस? ये मेरा तो उसका कोई डिस्कस नहीं है ना मामला में। आपकी कोई डिस्कस नहीं नहीं, है? मेरी कोई डिस्कस। अच्छा, ये बात पहले भी हो चुकी है कि अंजुमन ताजरान के जो फंड्स हैं, आप भी सदर रहे, क्या अब भी अंजुमन ताजरान काम कर रही है, तो क्या इसका कोई ऑडिट भी होता है? मतलब सर, हमारे जब हम नए नए आए थे ना जी, जब 2016 में मैं जीत कर पहली बार इलेक्शन जब 2016 में जीता था, जी हमने पहले 2 या 3 माह में ये फंड इकट्ठा किया था। जब फंड इकट्ठा किया, जब वो लड़के कलेक्ट करने वाले थे, जब मैंने उसका ऑडिट किया 3-4 माह का, जी हमने देखा हमें तो कुछ नहीं मिल रहा उसमें से। फिर हमने क्या किया, हमने उसमें चंदा वगैरह बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है। अपने दौर में मैंने फिर कोई अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ना कोई ऐसा कि किसी दुकान पर आग लग गई, किसी की चोरी हो गई, कोई नागहानी हो गई। नागहानी की वजह से हो गया, जी फिर मैंने अपने 5-7 दोस्त थे जो मुखैर हजरात थे, हमारे ऊपर ट्रस्ट भी करते थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मिलकर उनके नुकसानात पूरे किए। उनको नुकसानात जो भी थे ना, हमने अपनी जेब से उनको दिए हैं। मगर ये काम तो मौजूदा सदर साहब ने भी किया है, कुछ बच्चियों की शादियां की हैं, कुछ लोगों को मदद की है। मतलब सब अगर उसने किया है कि अल्लाह के राह में किया, खर्च किया, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पता नहीं कितने बच्चों की शादियां की हैं, कितने बच्चों को पढ़ाया जो मेडिकल में आज भी पढ़ रहे हैं, उधर उनके फीसें देता हूँ। मैंने अपनी शोमेंट नहीं की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। वो शोमेंट वाला बंदा है, हम शोमेंट नहीं करते हैं। अच्छा मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल साहब, आप सियासी कारकुन हैं और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा चंद यौम कबल लिया उन्होंने विज़िट किया, और लिया विज़िट के दौरान लिया मेडिकल कॉलेज का एक दरीना मुतालबा जो है वो उन्होंने पूरा किया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, और ये मेडिकल कॉलेज कहाँ बनना चाहिए? क्योंकि इदारे ज़ाहिर रोज़ रोज़ तो नहीं बनते, इसको कहाँ बनना चाहिए ताकि हमारे आने वाले बच्चों की जो है वो ज़रूरियात भी पूरी हो सके? मलिक साहब, पहले तो मैं मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इकदाम किया है, बहुत ज़बरदस्त। मेडिकल की लिया कि उस बहुत ज़रूरत भी थी, कॉलेज की ज़रूरत थी। मैं कहता हूँ जो CO हेल्थ के साथ खाली जगह पड़ी है ना, उस जगह पे बन जाए, जगह भी काफ़ी है, तो शहर के अंदर भी है, उस साइड पे बनना चाहिए। अच्छा मलिक मुजफ्फर साहब, एक सवाल आया है, मोहम्मद सलीम साहब ने पूछा है कि अंजुमन ताजरान का एक दफ्तर भी मौजूद है, उस दफ्तर को क्यों बहाल और ओपन नहीं किया जाता? इसके पीछे क्या कहानी और क्या वजह है? मुझे तो नहीं, जब हमने तो उनको जब इलेक्शन ये हम हारे थे, हमने तो 1 हफ्ते बाद तकरीबन 4-5 दिन में उनको चाबी दे दी दफ्तर की। मुझे तो नहीं पता फंक्शनल है या नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है। आप शहर में नहीं रहते? नहीं, शहर में रहते हैं, बस हमारा कोई इस तरह का, हम तो कभी गए नहीं फिर ऑफिस में दोबारा। अगर जाते तो लोग तो कहते हैं बंद है, शायद मुझे नहीं पता। अंजुमन ताजरान की सियासी और तंजीमी सरगर्मियाँ नहीं हो रही क्या? बिल्कुल नहीं है, मेरी बात सुने, ये नायल नालायक अंजुमन ताजरान पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक इनकी न मजलिस आमला बनी है, न सुप्रीम काउंसिल बनी है, आज तक बनी का इजलास तो होना नहीं था जब ये मजलिस आमला भी नहीं है, सुप्रीम काउंसिल भी नहीं है। एक्चुअल देखा जाए तो ये बिल्कुल अंजुमन ख़त्म हो चुका। अगर कोई वो करने को है ना, ये 1 मिनट भी अंजुमन ताजरान पहले दिन से ख़त्म है। नहीं, आपके अंजुमन ताजरान का जो आइन है जी, वो इस बारे में क्या कहता है? वो तो ये कहता 3 बार मजलिस आमला का इजलास होना चाहिए, 2 माह बाद मजलिस आमला का, 4 माह बाद सुप्रीम काउंसिल का इजलास जरूरी है। तो यहाँ इजलास नहीं हो रहे? नहीं, इजलास जब मजलिस आमला के मेम्बरान भी नहीं है, वो क्या ना सुप्रीम काउंसिल बनी नहीं है, कहाँ से इजलास होंगे?
इसकी यही नलायकी नायल आदमी, ये अंजुमन ताजरान का जो सदर बन नायल नलायक आदमी है, जब भी उसने 2-3 एहतजाज किए 20-25 बंदे वो भी बाहर से आते हैं, इसके पास तो बंदा नहीं, जब मजलिस आमला के मेम्बरान नहीं है वो क्यों है इधर? सुप्रीम काउंसिल 40-50 मेंबर होता है वो है, उनको बुलाते हैं, लोगों की किस तरह पता चले? जब हमारा दौर था अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब भी मजलिस आमला के मेम्बरान को मैसेज करते थे, सुप्रीम काउंसिल के मेम्बरान को मैसेज करते थे, उसी टाइम आते थे। मलिक साहब आपने देखा होगा कोरोना में कितना पूरी दुनिया बंद थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सदर बाजार बल्कि पूरा बाजार खुलवाया हुआ था, रमजान शरीफ का महीना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ताजर कारोबार अपने रोड के ऊपर आपने देखा होगा, एक दफा मतलब हमारे नियाज मुगल साहब एसी साहब थे, मनवर बुजदार डीएसपी साहब थे, 15-20 गाड़ियां पुलिस वाली थी, हमारा आमना सामना हो गया था सदर बाजार के मोड़ के ऊपर। हमने उनका दुकानें बंद करनी, हमने कहा बंद नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही मुज़ाकरात इमाम खाना में मुज़ाकरात किए, उन्होंने कहा ठीक है ईद तक आप अपना कारोबार कर सकें। हमने किया, वही हमारे पास ताकत थी। मजलिस आमला के 2-3 से मेम्बरान थे, 50-60 हमारे सुप्रीम काउंसिल मेम्बरान थे, ताजर हमारे ऊपर ट्रस्ट करते थे, ताजर सारा बाजार बाहर निकला हुआ था, आपने देखा होगा। मगर वोट देते हुए तो ताजरों ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया। नहीं वो ये तो आपको पता है, जब वोट देने का क्राइटेरिया एक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले इसी सदर को मैंने 2 बार आपने देखा, पिछले इलेक्शन में 2016 में भी ये लड़ रहा था, 2019 में भी, अब दोबारा ये ग्रुप अलग थे, ये हरा नहीं है हमारे से। आखिर कोई हमारे कोई कमी कोताही होगी, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। या आपकी कोई प्लानिंग में कोई कमी रह गई होगी? नहीं, कोई ऐसी प्लानिंग में नहीं थी हमारे। माशाल्लाह जी, बस ये एक इलेक्शन का आपको ट्रेंड होता है, कभी किस साइड पे मूव कर जाए। अच्छा, लिया के आपके नज़दीक हकीकी मसाइल क्या है और उनका जिम्मेदार कौन है? मतलब में लिया शहर है आपका, जी, जी। लिया जिला है हाँ, आपका। लिया शहर में बहुत सारे मसाले। एक तो हमारा जो है ना जी, ये पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा हो चुका है, सड़कें टूटी फूटी हैं, गलियों में सारे आप जाएं पानी होता है। मैं हुकूमत पंजाब से डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप फौरी तौर पे सीवरेज सिस्टम लिया का बिल्कुल नकारा हो चुका है, आप मेहरबानी करें, लिया को फंड जारी कराएं और इसमें ये सिस्टम सड़कें बहाल कराएं। सड़कों की वजह से कारोबार डिस्टर्ब है। हमारा बिजली का जो सिस्टम है उसमें भी ट्रांसफार्मर तकरीबन इस गर्मी की वजह से जल जाते हैं, उसको भी अपग्रेड होने चाहिए। और ताजरों के मसाइल, ख़ास तौर पे जो कंज्यूमर आते हैं उनके लिए वाशरूम के बड़े दरीना मसाइल हैं। इस पे बात तो सब ने की है मगर काम किसी ने नहीं किया। हमारे दौर में जब थे ना, हमें इधर एक सदर बाजार के साथ हमें 2 वाशरूम बनवाए थे लेडीज के लिए। हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है, जगह में मिल जाती, हम उस टाइम ही बनवा देते हैं, जगह को देने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट की जगह 3-4 का मैंने की थी, उन्होंने गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था। ज़ाहिर है जहाँ ताजर मौजूदा दौर में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, टैक्सेस की भरमार है, दुकानें खोलने और बंद करने की टाइमिंग का इशू है, ताजरों की जो मुआशी सूरत हाल है, उस पे आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ ये ताजरों के लिए बहुत मुश्किल तरीन दौर चल रहा है। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, आसानी करेगा। टैक्स लग रहे हैं। हमारी अंजुमन ताजरान की मीटिंगें तो हो रही हैं, ऊपर लाहौर में भी हुई हैं, उधर इस्लामाबाद में भी हुई हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये टैक्स वाला जो मामला पहले की तरह इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाए, जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहेगा। हमारे ताजे टैक्स देने को तैयार है, हुकूमत बनाया ना जो क्राइटेरिया, हुकूमत कहती है हमने बस पहले दिन ही से सारे ताजरों को जो सामान पड़े वो हम लेके चले जाएंगे, ये हमें दे दे। इस तरह तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप जब बिल को बढ़ाते जाए। हमारे जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान उनके भी मीटिंगें हो गई, तो यार थोड़ा थोड़ा सा आप ले। वो जो भी हुकूमत आती है, इमरान खान के दौर में थी, हम भी उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस, उधर मैं खुद गया था मीटिंगों में, यही था। अब थोड़ा थोड़ा करके ले ना जी, थोड़ा थोड़ा करते हमारे ताजर भी देने को तैयार है। वो कहते हैं यक मुश्त हमें बस लाखों में करोड़ों में हमें मिल जाए। धूल साहब, ताजर थोड़ा मुनाफा लेने पर तो राजी नहीं होता, टैक्स देने पे थोड़े टैक्स पे राजी जरूर हो जाता है। बेसिकली हमारा जो
ताजर तबका है ना जी, वो मुनासिब इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करता। असल में जो हमारा ये फैक्ट्री वाले मालकान है जो ऊपर बैठे हैं, वो हर रोज नए, आपने देखा होगा जो रोजाना की बुनियाद पर 4-5 कोरोना के बाद ऐसा दौर चल रहा है, रोजाना की बुनियाद पर ये रेट डेली बेसिस पे कभी 2 दिन में 2 to 3 रुपए बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं जो छोटा जो ताजर है जिसके पास छोटा जो 10 किलो 5 किलो पड़े ना, उसके ऊपर जुर्मा ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उसी के पास आता है। मैंने पहले भी मीटिंग में लाहौर में हुई है, इस्लामाबाद में, मैंने कहा पहले आप फैक्ट्री वालों को पकड़े, छोटे ताजरों को आप क्यों पकड़ते हो? छोटे ताजर जिस तरह उसको रेट मिलेगा, कई बार कहा है मिलेगा, ये रेट देख लें। वो कहता नहीं इसने क्यों बढ़ाया यार, पीछे से जब रेट आता है 10 रुपए का, उसने 1 रुपए 11-12 रुपए तो लेना है ना जी। वो कहता नहीं जी ये कल तो 8 रुपए था, आज ये 12 रुपए क्यों ले रहे? वो बार बार हमारे ताजर ये उन्हें चिट दिखाता है जो उनका स्लिप होती है, वो कहते नहीं हम ये नहीं मानते, हम 5,000-2,000 रुपये जुर्माना करके चला जाता है। मलिक मुजफ्फर साहब, माह रमज़ान का मौका हो या ईदैन का मौका हो, लिया का जो मुतवसत तबका है या कम तनख्वाहदार तबका है या दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं आपके दुकानदारों की वजह से। मलिक साहब वो तो बिल्कुल सही है, ये दौर मुश्किल तरीन दौर में पहले भी आपको बताया। आप मान रहे हैं ना कि दुकानदार नजायज तजावुज करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं। सर कोई दुकानदार इतना ओवर चार्ज नहीं करता, कोई एक आध कोई कर लेता है, मुझे नहीं पता, पर एक्चुअल जो ज्यादा अक्सरियत है वो इतना चार्ज नहीं करता। अब जब चीज आप उधर से महंगी ले आए तो हमारा छोटा तबके वाला वो तो शुदा वाकई मजलूम है जी। हमारे ये छोटे तबके के लिए हुकूमत को कोई सब्सिडी देनी चाहिए, ऊपर से कोई ऐसा क्राइटेरिया बनना चाहिए हुकूमत के। जब हुकूमत ही हमारे कुछ नहीं करती तो छोटा ताजर या छोटा तबके वाला बेचारा क्या करेगा? मगर जब डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में तो आपके जो नुमाइंदे हैं वो उनके दस्तखत होते हैं और उन दस्तखतों से लिस्ट जारी होती है, फिर उस पर आपके दुकानदार अमल दरामद नहीं करते। मलिक साहब मैं हल्फन कहता हूँ, ये उधर जो मीटिंग होती है मैं भी भुगता चुका, सारा कुछ मैनेज होता है, फेक होती है सारा कुछ। वो फर्जी तौर पे कहते हैं यार फलां जिले का रेट ये है, आप ये करें। अब ये बताएं जी हम का जब वो फैसलाबाद का रेट है, फैसलाबाद लिया में देखो जब लाहौर से जो चीज आती है उसे किराया कितना लगता है? नहीं आप मान जाते हैं फिर? हम नहीं मानते, हम माने ना माने वो कहते हैं इतना करना है, बस ये कर रहे हैं हम। जबरदस्ती आपके साथ करते हैं? जबरदस्ती होता है उधर सारा। तो आप ये सारी जबरदस्ती तस्लीम कर लेते हैं? हम तस्लीम, हमारे दौर में कभी तस्लीम नहीं हुआ था, हम वापस हम दक्षिण नहीं करते थे। तो ये आज वाले करते हैं? आज वाले करते, पता आज करता मुझे नहीं पता, पर उस टाइम तक ये मैं बरमला कहता उधर फेक होती है। अब प्रोग्राम के आखिर में मैं प्रोग्राम में आपकी इजाज़त से और आपके एक मरतबा फिर चाहूँगा कि आपने अंजुमन ताजरान के जो सदर साहब हैं उनका चैलेंज बकायमी होश व हवास कबूल कर लिया है कि मैदान सज जाए पुरानी लिस्ट पे, और आप रेडी हैं? मलिक साहब मैं आपको कहता, आपको जिस तरह मैं कहे ना मैं आपका हलफ उठा के दे सकता हूँ। हम तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, परसों भी तैयार हैं। इसको फील फॉर, हमने तो इसे नहीं कहा था चैलेंज, हमने नहीं किया था, इसने हमें चैलेंज किया। मैं इलेक्शन कराने को तैयार हूं, आए बैठे ऐलान करें। हमें बिल्कुल मैं 110% श्योरिटी से कह रहा हूं, मैं हमारा ग्रुप के साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा हम भी तैयार हैं। वो कराने को वो कराए, झूठा बंदा नहीं कराएगा, उसे नहीं पता मेरी कारकर्दगी क्या। आप ये जय ताजरों में उसे पता चल जाएगा उसकी कारकर्दगी कितनी अच्छी है। अच्छा, लिया के शहरियों का एक और मसला गैर कानूनी जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं वो भी है, जिसमें लोगों को बड़े मसाइल का सामना है। बहसियत शहरी आप इस मसले के हवाले से किन ख्यालात का इजहार करते हैं? मलिक साहब ये गैर कानूनी कॉलोनियाँ नाजायज़ हैं जी, हम भी कहते हैं ये नाजायज़ हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसमें ज़्यादातर जो तरीक़ाकार है ना जी, हुकूमत ने इतना लंबा गंभीर बना चुके हैं, जो भी जाता है जी उसकी फैले पड़ी हैं, सालों साल पड़ी रहती हैं जी।
वो अब थोड़ा सा वो तामन करे, वो पैसे जमा कराने को तैयार हैं। वो कहते आज हमारा वो नक्शा नवीस हमारा ऑफिसर नहीं है, हमारा फलां क्लर्क नहीं है, इसमें लोग धक्के खा खा के वैसे थक चुके हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। साबिक सदर अंजुमन ताजदान लिया मलिक मोहम्मद मुजफ्फर इकबाल धूल साहब, आप लिया के ताजर बिरादरी के नाम कोई प्रोग्राम के अख्ताम में पैगाम देना चाहें? सबसे पहले मैं अपने ताजर भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह 1.5 साल जुल्म ज़्यादती का दौर आपके ऊपर मुसल्लत हुआ है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होने वाला है। ये अंधेरी रातें अंधेरे दिन ख़त्म होने वाले हैं। इंशाअल्लाह जल्द आपको ये अच्छा दौर, जिस तरह हमने पहले 7 साल अपने दोस्तों की खिदमत की है, इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा भरपूर तरीके से खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह उनके साथ हर किस्म की तामन होगा। ये जो शेड वगैरह ये उन्होंने उतारे हैं आपके साथ, इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा, ये दोबारा आपको लगा के देंगे, अपनी जेब से लगा कर देंगे। इंशाअल्लाह आपके साथ भरपूर तामन होगा। बहुत शुक्रिया मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल साहब, साबिक सदर अंजुमन ताजदान लिया। नाज़रीन, आपके बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, बहुत सारे सवालात भी आपने पूछे किए। हमने कोशिश तो की है कि उन तमाम बातों का अहाता करें जो आप पूछ रहे हैं, मगर काफ़ी सारी चीज़ें फिर भी रह गई, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। आइंदा नशिस्त में वो सारी बातें जो आज बकाया हैं धूल साहब से करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे थे सीनियर सहाफ़ी प्रोड्यूसर लिया TVID अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। प्रोग्राम के अख्ताम पर अपने मेज़बान मकबूल इलाही को हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शमा रोशन रखें। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में मैं एक मरतबा इस बात का इयादा करना चाहता हूँ कि सदर अंजुमन ताजदान लिया हाजी अज़हर हाँ साहब अगर धूल साहब के उठाए हुए नुकात पर कोई बात करना चाहें तो ये प्रोग्राम उनके लिए हाज़िर है। अल्लाह निगहबान।